Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to learn chapter number 2, Ecosystem of GS class 4. After completing this chapter, you will be able to recognize an ecosystem, explain biotic and abiotic factors, recognize interactions between animals and plants, describe a few food chains, and analyze their structure. All living and non-living things around us are called environment. Every living things live in a particular environment. Fish live in water, tigers live in forest, whereas human beings live in villages and cities. डियर स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में शामिल हैं. हर लिविंग थिंग का अपना एक मखसूस इन्वायरमेंट होता है. मिसाल के तौर पर फ़िश पानी में रहती है तो उसका इन्वायरमेंट वाटर है. टाइगर्स फॉरेस्ट में रहते हैं इसलिए उनका इन्वायरमेंट फॉरेस्ट है, जबकि ह्यूमन बींग्स विलेजेस और सिटीज़ में रहते हैं. एक्टिविटी 2.1 मैच द एनिमल्स विद देयर प्लेसेस ऑफ लिविंग. डियर स्टूडेंट्स, आप इन एनिमल्स को उनके प्लेस ऑफ लिविंग के साथ मैच करेंगे. इकोसिस्टम. द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी इन्वायरमेंट मेक द इकोसिस्टम. किसी भी इन्वायरमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलकर वहाँ का इकोसिस्टम बनाते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फाउंड ऑन आवर अर्थ. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, grassland, oceans, rivers, ponds, snowy areas and deserts. For your information, largest desert of the world is Sahara, which is located in the continent Africa. The desert located in Mia Valley and Bhakkar in Pakistan is called Thal, and the desert located in southern parts of Punjab is called Cholistan. The desert located in Sindh is called Thar. Activity 2.2 Write the names of the following living things in their ecosystem. Dear students, आप इन living things को देखते हुए इन boxes में उनका ecosystem लिखेंगे. Components of ecosystem. There are two components of an ecosystem, abiotic components and biotic components. Abiotic components. The non-living components of an ecosystem are called abiotic components. These include temperature, air, water, light and soil. किसी भी इन्वायरमेंट में वहाँ के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स उस इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं. बायोटिक कंपोनेंट्स. लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स. किसी भी जगह के लिविंग कंपोनेंट्स वहाँ के बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं. The biotic components consist of three groups which are given below. First is producer. Plants produce food for themselves and for animals with the help of water and sunlight. That's why they are called producers. Plants अपने लिए और दूसरे एनिमल्स के लिए पानी और सूरज की रोशनी की मदद से खुराक तैयार करते हैं, इसलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. All the plants, herbs, climbers, shrubs and trees are producers. Aquatic plants are also producers. Consumers. Living things which obtain food from the living things are called consumers. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर ना करें और फूड की प्रिपरेशन के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करें, उन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है. ऑल एनिमल एंड ह्यूमंस आर कंज्यूमर्स. Decomposers. The living things which break down the dead bodies of plants and animals into simple particles and obtain their food from these are called decomposers. ऐसे living things जो प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को ब्रेक डाउन करके सिंपल पार्टिकल्स में चेंज करें और अपने फूड को ऑब्टेन करें, उन्हें डीकम्पोजर्स कहा जाता है. सम बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई आर द मेन डीकम्पोजर्स. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. कोरल्स आर अ पार्ट ऑफ ब्यूटीफुल इकोसिस्टम अंडर द सी. They look like stones but actually are animals. Balanced ecosystem. Sun is the main source of energy in an ecosystem. Plants make food with the help of sunlight, carbon dioxide and water. They also produce oxygen in this process. किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स सन है. प्लांट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए खुराक बनाते हैं और इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं. दिस ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन. एनिमल्स सांस लेने के अमल के दौरान इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं जो कि प्लांट्स
यूज़ कर लेते हैं फूड बनाने के लिए। सच सेल्फ सस्टेनिंग एंड ड्यूरेबल इकोसिस्टम इज कॉल्ड बैलेंस्ड इकोसिस्टम। All the living things are essential for one another. They affect the lives of one another. Some animals benefit or harm one another. Food chain. To obtain food, living things depend on one another. Plants make food with the help of sunlight and water. किसी भी इकोसिस्टम में एनिमल्स अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। द एनिमल्स विच ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। रैबिट, गॉट, डियर एंड काउ आर एग्जांपल ऑफ हर्बीवोर्स। द एनिमल्स विच ईट other animals are called carnivores. Lion, tiger, crocodile, and shark are examples of carnivores. The animals which eat both plants and animals are called omnivores. For example, man, bear, birds, and crow. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाएं उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हों उन्हें ओमनीवोर्स कहा जाता है। Producers make food which is used by herbivores. The herbivores are eaten by carnivores. Producers जो खुराक बनाते हैं herbivores उस खुराक को इस्तेमाल करते हैं। herbivores को आगे carnivores खाते हैं। These carnivores may be eaten by other carnivores. इन carnivores को दूसरे carnivores भी खा सकते हैं। The series of eating and being eaten in an ecosystem is called food chain. Grasshopper eats a plant and is eaten by a rat. Rat becomes a prey of an owl. This is an example of food chain. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फूड चेन की एक एग्जाम्पल दी गई है जिसमें प्लांट को ग्रास होपर खाता है और ग्रास होपर को एक रैट और रैट को ओल। एक्टिविटी 2.4 ऑब्जर्व एन इकोसिस्टम नियर योर स्कूल एंड आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। डियर स्टूडेंट, आप अपने स्कूल के नज़दीक इकोसिस्टम को ऑब्जर्व करने के बाद इन कंपोनेंट्स को लिखेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। मेक अ फूड चेन यूजिंग द आइडेंटिफाइड कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हुए आप एक फूड चेन तैयार करेंगे। लिंक्स ऑफ फूड चेन। अ फूड चेन कंसिस्ट ऑफ 3 लिंक्स। In any food chain, the first living thing is a producer. For example, plant and algae. किसी भी फूड चेन के अंदर फर्स्ट लिविंग थिंग जो है वो एक प्रोड्यूसर होता है जो कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। सेकेंड मेन लिंक इज द हर्बीवोर और ओमनीवोर एनिमल, फॉर एग्जाम्पल गोट एंड रैट। किसी भी फूड चेन के अंदर सेकेंड एनिमल कोई भी हर्बीवोर या ओमनीवोर एनिमल होता है। थर्ड मेन लिंक इज अ कार्निवोर और ओमनीवोर एनिमल, फॉर एग्जाम्पल लायन एंड स्नेक। और थर्ड लिंक जो कि किसी भी फूड चेन में मौजूद हो वो या तो एक कार्निवोर होता है या कोई ओमनीवोर एनिमल है। एक्टिविटी 2.5 कंप्लीट द फॉलोइंग फूड चेन्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इन बॉक्सेस के अंदर पिक्चर्स को देखते हुए नाम लिखेंगे और फूड चेन कंप्लीट करेंगे। थर्ड फूड चेन आप अपनी बुक्स पे खुद कंप्लीट करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट्स क्लियरली।